Hello, my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11, accountancy. We are on the topic of subsidiaries book. How the subsidiaries book, the transactions are recorded in subsidiaries book. One of the more cash book explain all the cash related transactions are recorded in cash book. But other subsidiaries book, yes, today I would like to tell you just the purchase book, sales book, purchase return book, sales return book. Now see class 11th accountancy, class 11th accountancy. Now see here, just we are going to draw the format of purchase book. This one is the format of purchase book. Date. Next one, name of supplier. Name of suppliers. Other column, LF, ledger folio number. This one is the detail. And this one is the amount. Now, purchase book. A number of practical questions given. Now you have to learn this one, how the transactions are recorded. Points to be remembered. All the credit transactions are goods recorded in purchase book. The goods refer in which the trader is dealing, means buying and selling. That is called the goods. They are, whether they are purchased on credit, recorded in purchase book. Detail, invoice number. One column is more before the detail. Just invoice number. Invoice number, then detail, and then amount. Suppose that you are or we are the furniture dealer, and the credit transaction, whatever the information given, Mr. Mehta and Sons, March 4. So March 4 the transaction, that is the information, March 4. Purchased from
Mehta and Sons, Kanpur. So Mehta and Sons, name of supplier Mehta and Sons. Mehta and Sons, Kanpur. Furniture dealer, we are 20 table at the rate of 400 per table. Invoice number 230. Invoice number 230. So the detail 20 multiplied by 400 is equal to 8,000. 8,000. Next, 50 chairs. 50 chairs at the rate of 500 per chairs. Is equal to 5 5 25. 50 chair 500 per chair multiplied by 25,000. 5-piece sofa. 5-piece sofa at the rate of 2,000 per sofa. Multiplied by 10,000. Trade discount 10%. Suppose that trade discount given. So you can write this way, just total of this one 25 10 35 8 43,000 43,000 less trade discount 10%. Trade discount 10%. So 10% minus 4,300 is equal to 0 0 38,700. That will be the credit purchase recorded in purchase book. My dear children, आप देख रहे हैं कि उन्हीं चीजों को परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा जिसमें व्यवसाय करता है। अभी मान लीजिए फ्रॉम राम एंड सन्स परचेज टाइपराइटर और मोटर कार for rupees 80,000 will not be recorded in purchase book. Because of that is the acquisition of assets. वो जर्नल प्रॉपर का आइटम हो जाएगा, वो माल नहीं होगा। आप फर्नीचर डीलर हो तो जो फर्नीचर से रिलेटेड सामान है जिसको आप खरीदते बेचते हैं वही आपका परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आप ध्यान देंगे कि हम आपको ये बताने जा रहे हैं
किस तरह से सेल्स बुक का रिकॉर्ड होता है। अब ये जो फॉर्मेट है, डेट लिखा हुआ है, यहां नेम ऑफ सप्लायर के जगह पर नेम ऑफ कस्टमर, वी कैन राइट द नेम ऑफ कस्टमर। तो यहां पर कस्टमर का नाम हो जाएगा और जैसे आप बिक्री करते हैं उस तरह से बिक्री करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, एक बुक आप समझ गए तो आप ये जान लीजिए कि आप सेल्स बुक और परचेज बुक दोनों समझ गए। उन्हीं चीजों को सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे जिनको आप खरीदते और बेचते हैं। यदि आप किसी और तरह का एसेट्स या किसी और तरह की चीज खरीदते या बेचते हैं तो उसे इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ध्यान रहे, इन बातों का जरूर ख्याल रखना होगा कि जिसमें व्यवसायी व्यवसाय करता है उन्हीं चीजों को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी क्रेडिट, उधार लेन देन। उधार, अगर जो कैश ट्रांजैक्शन है, कैश परचेज करते हैं तो परचेज बुक में ना रिकॉर्ड करके आप कैश बुक में रिकॉर्ड करें। बिकॉज ऑफ दैट ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, cash sales recorded in cash book and credit sales of the goods recorded in sales book। उसी तरह से सेम वे में अब आइए आप परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न, वॉट एवर द गुड्स परचेज्ड बाय द ट्रेडर रिटर्न टू द सप्लायर, दैट इज कॉल्ड द परचेज बुक, a purchase return book. In such books, same format but in place of invoice number, just the debit note. Debit note is prepared to return the goods to the supplier. And when the goods are returned by the customers, just the credit note is prepared for the customer. So remember my dear, इस तरह से आप देखेंगे कि परचेज बुक, सेल्स बुक। अब फर्ज करो कि आप फर्नीचर डीलर हो, फर्नीचर खरीदते हो, बेचते हो, आप मेहता एंड सन्स कानपुर को सामान ये खरीदने के बजाय बेच रहे हैं, तो आप लिखेंगे 4 मार्च को मेहता एंड सन्स कानपुर 20 टेबल बेच रहे हैं एट द रेट ऑफ 400 पर टेबल, 8000 का इनवॉइस नंबर आपका 230 के अनुसार। 50 चेयर्स एट द रेट ऑफ 500 चेयर्स 25,000, आप उसके अनुसार आप बेच रहे हैं तो कितना हो जाएगा 25,000 और 5 पीस सोफा 2,000 पर सोफा, तो 25 का 10,000, 10,000 आपने बेचा और उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है। वो द ट्रेड डिस्काउंट इज बीइंग अलाउड टू द पर्टिकुलर कस्टमर 10%, so less trade discount 4,300 means total sale, credit sale is equal to 38,700। ये हो गया सेल्स बुक। उसी तरह से जो भी अब सामान वापस क्यों किया जाता है, या तो कास्ट सामान की अधिक आ गई हो या डिफेक्टिव हो, इस तरह से सामान को वापस किया जाता है और उसी तरह से सामान आपका वापस आता भी है। यदि बाइंग सेलिंग आप ट्रेडर हैं, उस तरह का व्यवसाय करते हैं। बाकी जो भी आइटम होते हैं उनको अगर जो इंफॉर्मेशन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप उसका जर्नल प्रॉपर बना लें, जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर दें, न कि परचेज बुक में और सेल्स बुक में। जो भी क्रेडिट
ट्रांजैक्शन होता है। देखेंगे बेटा, इस तरह से आप बहुत बेहतरीन ढंग से आप सीख लेंगे सब्सिडायरीज बुक में कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। दूसरा चीज, हम इसमें एक कॉलम बढ़ जाता है जीएसटी का। जीएसटी जो गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स होता है इस समय, तो जो भी लगेगा जीएसटी उसका अलग कॉलम बना देंगे। जीएसटी को अलग दर्शा दिया जाता है कॉलम बना करके, चाहे इनपुट जीएसटी हो चाहे आउटपुट जीएसटी हो। अगर जो आप परचेज करते हैं तो इनपुट जीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है। एसजीएसटी का मतलब होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी, और एक सीजीएसटी होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी होता है, आईएसजीएसटी इंटरनेशनल जीएसटी लगता है। तो इसके विषय में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और जर्नल का तरीका जो होता है बेटा, जर्नल बनाने का एक बार पुनः मैं आपको बता दूं। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट, दिस वन इज द रूल्स। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम credit. So remember my dear, you can solve the questions, whatever the questions, practical questions given in your book. Just go through the questions and try to solve. When you face the problem, just you can ask me. Now suppose that purchase goods from Mohan, journal entry, this one is the credit transactions, the journal entry. Because of that in real account, personal account and nominal account. Personal account individual's account, real account all the assets and liabilities, and nominal account just you can find the expenses and income. तो हमने मोहन से सामान खरीदा, what comes in debit मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट, देने वाला गिवर पर्सनल अकाउंट में आ गया मोहन, क्योंकि कैश तो कुछ आपके पास से जा नहीं रहा है। तो इस तरह से हम एंट्री बनाते हैं। और एंट्री करते वक्त ध्यान रखना होगा, सपोज दैट मजदूरी दिया, वेतन दिया, तो ये एक्सपेंसेज हैं, तो एक्सपेंसेज हमेशा डेबिट होते हैं। तो हम वेतन दे रहे हैं, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट आपके पास से जा रहा है, किस रूप में दे रहे हैं? कैश में, टू कैश। वेजेस पेड, वेजेस अकाउंट डेबिट, टू कैश। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर जो लेजर पोस्टिंग आप करते हैं, कल हम लेजर पोस्टिंग बताएंगे क्वेश्चंस का। और ये परचेज बुक हो गया, आपका सेल्स बुक हो गया। ध्यान रहे, एक बार फिर से रिमाइंड में करवा रहा हूं आपको, ध्यान देंगे। All cash related transactions are recorded in cash book. Cash book containing two columns, receipt and payment. Whatever the cash received by the traders in receipt column recorded, whatever the payment made during the assessment year recorded in payment column. All expenses, just the cash related transactions in purchase book, my dear, just the in which the trader dealing that goods are purchased on credit recorded in purchase book. Whatever the goods buying and selling,
जिसमें आप व्यवसाय करते हो, जिस चीज के व्यवसायी हो, वही आपके लिए गुड्स होगा और उसे आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे। यदि उधार सेल्स बुक में उधार बेचते हो गुड्स को तब, और कोई चीज नहीं, और कोई भी चीज आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसका जर्नल प्रॉपर बना। अगर जो कैश बेचते हैं तब तो कैश बुक में चला जाएगा, कैश बुक में सारी चीज चली जाएगी, लेकिन से यदि उधार बेचते हैं तो उसका जर्नल प्रॉपर एंट्री हो। रिमेंबर, यही है आज का आपका चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।